Now see, we had started yesterday with recruitment and selection chapter. We had done introductory part of recruitment, definition, selection process, types of, you can say sources of recruitment, internal and external. Okay, there were so many types of internals and their advantages and disadvantages. We had also done types of external sources of recruitments, also the advantages and disadvantages of external. See, advantages of external sources of recruitment and disadvantages of external sources and recruitment. Now comes next part, which is selection. We have only 2-3 topics to cover, so I think today we can complete our chapter. Now selection means after recruitment there is another program that has to be carried out by a company, and that is known as selection. Selection means to choose the right candidate, the best candidate for a specific job. That is known as selection, and that is a logical step. You don't have to just close your eyes and randomly select anybody for your post. No, it is logical step in the human resource process after recruitment. Please remember, it comes after recruitment. Selection comes after recruitment. Yes, so we can say right person for the right job at right time. Very good, Shivani. You have specifically noted the point of selection. Very good. So it has to, देखो लिखा हुआ है, once an effective recruitment program has been carried out and supplied enough job applicants, मतलब आपके पास already अच्छे खासे job applicants आ गए. Now the next step is to choose the best candidate for a specific job. So selection is process of choosing. Select करना, बोलते ना हम select करो कौन सा ज़्यादा अच्छा है. हम बैग्स लेने जाते हैं, शूज लेने जाते हैं. सो वी सी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट वी चूज वन ऑफ देम और मे बी टू ऑफ देम. ठीक है. It is a process of choosing the most suitable person who is qualified, best, suitable out of all the applicants. जितने सारे applicants आए हैं apply करने के लिए, उसको बोलते हैं applicants. Person who has come to apply is known as applicant. So there are number of applicants coming to apply for the job post, vacant job post. So you have to choose out of them the best one. So it is process of choosing individuals possessing the required qualifications, skills, knowledge, subject knowledge to perform the job successfully. डेली ऑर्डर डिफाइंस, डेफिनेशन भी दिया हुआ एक अच्छा सा. डेली ऑर्डर ने बताया ये डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. किस किस बेसिस पे आप उनको सिलेक्ट करते हो? टू क्लासेस में उनको डिवाइड करके, दोज हु आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट. मतलब किनको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और किनको नहीं दे रहे हो, किनको सिलेक्ट कर रहे हो, किनको नहीं कर रहे हो. सो सबसे अच्छा डेफिनेशन इन्होंने बताया है. तो सिलेक्ट किया तो कुछ तो उनमें क्वालिटीज होंगी ना. सो वो क्वालिटीज हम देखकर हाँ उनको सिलेक्ट कर रहे हैं. और थॉमस स्टोन ने एक और डेफिनेशन बताया है, एंड दैट इज सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन के एप्लीकेंट्स. मतलब डिफरेंशिएटिंग करते हैं अभी हम कि ये एप्लीकेंट को जॉब पे रखना है कि इस एप्लीकेंट को जॉब पे रखना है. तो दोनों में हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं in order to identify him and choose the greater likelihood of success on the job. Choose those with a greater likelihood of success on the job means उनको choose करना है जो आपके पर्टिकुलर जॉब के लिए, उनके पर्टिकुलर जॉब के लिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. मतलब जिनमें ज़्यादा स्किल्स हैं, जिनमें ज़्यादा नॉलेज है और जिनमें ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं जॉब की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की. सो आप डिफ्रेंसिएशन करते हो. सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्ट कब हम करते हैं? जब हम कंपैरिजन करते हैं. अब आप 3-4 चीज़ें खरीदने जाते हो तो वैरायटी जब आप देखते हो तो कंपेयर करते हो ना, इसमें क्या अच्छा है और इसमें क्या अच्छा है, एंड किसका प्राइस कम है, किसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं, है ना. तो सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है? कंपैरिजन होता है, डिफ्रेंसिएशन निकालना कि किसमें ज़्यादा अच्छी बातें हैं और कम प्राइस में मुझे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है. सो वैसे ह्यूमन रिसोर्स में होता है
कि इतनी सैलरी में इतने स्किल्स आपको मिल रहे हैं एक पर्सन में, तो ये तो कंपनी बोलेगी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो दैट वे डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। मतलब पहले आप सारे एम्प्लॉयज को अप्लाई करने के लिए बोलते हो जॉब्स के लिए, सारे जितने एम्प्लॉयज है सारे आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए, कौन कौन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है। लेकिन अभी उसमें से आप सिलेक्ट करते हो। ऑन द अदर हैंड सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ द रिक्रूटिंग। मतलब जो रिक्रूट हो चुके हैं, जो अप्लाई कर चुके हैं, जो हैंड में है मेरे पास इंफॉर्मेशन, उसमें से चूज करना द बेस्ट वन। So first differentiation. Second, recruitment involves attracting and searching for the candidates. Searching for the candidates. And selection means choosing the candidates. आपको फर्क समझ में आ रहा है? Recruitment means searching the candidates, whereas selection means comparing and choosing the candidates. Recruitment में आपको ढूंढने हैं कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप इंफॉर्मेशन देते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो रिक्रूटमेंट के लिए। सिलेक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक अच्छा खासा डिस्टिंग्विश है जो आप लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक पॉइंट करके लिख सकते हो कि रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, सिलेक्शन के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में मैं एडवर्टाइजमेंट देकर लोगों को अपने पास बुला रही हूँ, सर्च कर रही हूँ लोगों को कि मेरे पास कौन जॉब कर सकता है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट में मैं सर्चिंग कर रही हूँ और सिलेक्शन में मैं चूज करती हूँ कंपेयर करके। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव इन इट्स अप्रोच। पॉजिटिव है, हाँ, आप सब लोगों को बोलते हो आप मेरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डाल दी आपने। आप मतलब जो भी क्वालिफाइड पर्सन है, आप वाइडर चॉइस देते हो लोगों को। मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे लोग आपके पास आकर रिक्रूट हो सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं आपके पास आकर। लेकिन सिलेक्शन एंड नेगेटिव अप्रोच हो जाता है कभी कभी, समटाइम्स। क्यों? क्योंकि आप चूज करते हो ना कि 10 लोग आए हैं तो उसमें से 3 लोगों को मैंने रखा और 7 लोगों को मैंने छोड़ दिया। तो जिन 7 लोगों को मैंने छोड़ दिया वो तो डिसअपॉइंट हो गए बेचारे। तो सिलेक्शन है ना, कभी कभी नेगेटिव अप्रोच हो जाते हैं, क्योंकि लार्ज एप्लीकेंट्स जब आते हैं तो उसमें से मुझे few number of employees are selected, those who are suitable for job। तो बाकियों को आप निकाल देते हो, मतलब आप अपॉइंट नहीं करते हो एज एन एम्प्लॉय। सो मतलब वो कैपेबल नहीं है, वो आपकी जॉब के लिए कैपेबल नहीं है, बट दे आर कैपेबल इनफ, दैट्स व्हाई दे हैव कम टू क्रैक एन इंटरव्यू। ठीक है, समझ में आया? तो वो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि हम क्या कैपेबल नहीं है, हम सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। सो दैट वे, यस, ओके। चलो, आई एम लुकिंग एट चैट बॉक्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी रेस्पॉन्स बिकॉज इट गिव्स मी at least a confirmation for I mean whether you are getting to what I say or not. Anyways, selection procedure. Hmm. Selection procedure. Now, what do you mean by selection procedure? This is just for you to just go through। ICICI बैंक का सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, बट ऑफिशियली जो 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 बुक्स के हिसाब से, जो स्टेप्स के हिसाब से दिया होता है, जो सारी कंपनीज जनरली, जो बोल सकते हो आप जनरली जो फॉलो किया जाता है, ये तो सिर्फ ICICI कंपनी है जो फॉलो करती है। कि पहले अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स देती है लोगों को, ऑनलाइन ओपनिंग जॉब है करके, ऑनलाइन डाल देना, ऑफलाइन डाल देना, न्यूज़पेपर्स में डाल देना, एप्लीकेशंस डाल देना, फिर शॉर्ट लिस्टिंग करना। उसमें से कुछ कितनी एज की रिक्वायरमेंट मुझे है, कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, कितने एक्सपीरियंस की मुझे रिक्वायरमेंट है। सपोज सबने अप्लाई कर दिया, 2 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे ने भी अप्लाई कर दिया, 10 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे ने भी अप्लाई कर दिया, फ्रेशर ने भी अप्लाई कर लिया, तो मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगी कि मुझे 10 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, मोर देन 5 इयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए। तो मैंने शॉर्ट लिस्टिंग कर दी। पर्सनैलिटी प्रोफाइलर, तो मतलब इसमें मैंने क्रॉस क्वेश्चनर बना दिया कि पता लगाने के लिए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या सोचते हैं वो, उनकी थिंकिंग कैसी है जॉब को लेकर। डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। इंटरव्यू लेने से पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट की, फिर इंटरव्यू रखा। इंटरव्यू में मैंने जानने की कोशिश की कि उनका उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनका नॉलेज कैसा है, सब्जेक्ट नॉलेज, और
कैसे वो बिहेव करते हैं अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिया जाए उनको, तो कैसे वो पर्टिकुलर एक टास्क दी जाए तो कैसे परफॉर्म करेंगे, है ना। उसके बाद ऑफर, जो सिलेक्ट हुआ उसको ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्मल ऑफर देंगे ना कि आप अभी से हमारी कंपनी में आप ज्वाइन कीजिए। आप उनको बताएंगे कि आपका जॉब में क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लोकेशन क्या है, कंपेंसेशन क्या दिया जाएगा आपको, ठीक है। ऑफर, यस, ऑफर लेटर में ये सब दिया जाता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब अब वो सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करेगा ऑफर को। उसमें ना मेडिकल चेकअप किया जाता है पर्सन का, अगर मेडिकली वो फिट है तो ऑफर एक्सेप्टेड। ज्वाइनिंग, अब नेक्स्ट फिर क्या होता है, एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, ठीक। तो आईसीआईसी का ये है। वैसे नॉर्मली कैसा है, जनरली देखा जाए तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू सबसे पहले आपसे लिया जाता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म्स दिए जाते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट की जाती है आपकी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की इंटरव्यूज के थ्रू आपका समझा जाता है कि बेटर कौन है एम्प्लॉयज। मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है। रेफरेंस चेक मतलब किसने आपको भेजा है, किसकी पहचान से आए हो, उसका रेफरेंस चेक, फाइनल सिलेक्शन। तो अभी वन बाय वन वी विल सी। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ये मेरा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरव्यू इज टू डिस्कार्ड दोज कैंडिडेट्स हु आर अनक्वालिफाइड। मतलब पहले से ही पता लगा लो ना कि अनक्वालिफाइड कौन है। मुझे चाहिए मोर देन 5 years एक्सपीरियंस्ड पर्सन, पर यहाँ पे तो 2 years एक्सपीरियंस्ड भी आए हैं, 0 फ्रेशर्स भी आए हैं, 0 year एक्सपीरियंस, तो उनको निकाल दो। ये प्रिलिमिनरी में पता लगता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू से पता लग जाता है कि कितने लोग अनक्वालिफाइड है, उनको मैंने निकाल दिया। नो चांस ऑफ हायरिंग देम, तो उनको वेट कराने का मतलब नहीं है ना। अननेसेसरीली हम सामने वाले कैंडिडेट्स को वेट करवाएं क्यों, जब उनका चांस ही नहीं है सिलेक्शन का। उनका टाइम मनी वेस्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी तो टाइम मनी एफर्ट्स वेस्ट है ना, ठीक है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा टाइम लगता है इंटरव्यू को। इसीलिए पहले ही फर्स्ट स्टेप में मैंने देख लिया कि कितने लोग मुझे चाहिए इंटरव्यू करने के लिए, ठीक है। yes, person should be fit to perform all the job duties, ठीक है। वो ऐसे पर्सन को ही मैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में रखती हूँ। मतलब मेरे एक्सपीरियंस, मुझे कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए पर्सन की, फीमेल्स चाहिए कि मेल्स चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन ब्लैंक्स। एप्लीकेशन ब्लैंक मतलब ब्लैंक फॉर्म जो हम कैंडिडेट को देते हैं इंफॉर्मेशन फिल करने को, कि आपका नाम, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपने कितने इयर्स कौन सी कंपनी में कहाँ जॉब किया, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट्स, आपकी आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं उनको एक ब्लैंक फॉर्म दे देती हूँ, जिससे मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब फिर बार बार मुझे सब एम्प्लॉयज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपकी एज क्या है, आपका ये क्या है, आपका वो क्या है। तो ये सब तो आपको पर्सनल डिटेल्स आपकी मिल गई फॉर्म में, फॉर्म के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्शन टेस्ट। अब होगा सिलेक्शन टेस्ट, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट रख लिया, एप्टीट्यूड का इंटरव्यू रख लिया, परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क रख लिया, कि अगर मैंने आपको ये टास्क दे दी तो आप कैसे परफॉर्म करोगे, 2 मिनट्स में बता दो कि आप कैसे परफॉर्म करोगे। अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, ये बता दो, ठीक है। प्रैक्टिकली मतलब कुछ ऐसा वो लोग बिहेवियर सिचुएशन चेक भी करने देते के हैं, लिए, सॉरी, सिचुएशंस देते हैं कि ऐसे सिचुएशन वेरी होगा तो वेरी गुड, आपका कैसे वेरी रिएक्ट। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो रोल बेस्ड सिचुएशन देते हैं, जैसे आपको रोल परफॉर्म करने के लिए दे दिया, वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस चेक करेंगे, एटीट्यूड चेक करेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ज्यादा एग्जैजरेट तो नहीं, आई मीन सॉरी, एंजाइटी में तो नहीं आ जा रहे हो, परेशान तो नहीं हो जा रहे हो, ठीक है। तो वो चेक किया जाएगा आपका परफॉर्मेंस लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, उसी में ही सिलेक्शन टेस्ट में ही आपको दिया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब आपको पता होगा, एप्टीट्यूड इज एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग। मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेकर आपने उसमें से क्या सीखा। जैसे मैंने टैली सीखने के लिए ट्रेनिंग ली थी, टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। अब मैंने उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से क्या सीखा, वो आप करके बताओ मुझे, कौन से स्किल्स आपने सीखे उसमें। कंप्यूटर स्किल्स, स्पीड, स्पीड सीखा मैंने, कंप्यूटर में स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि टैली जो करते हैं उसमें स्पीड आ जाती है उनमें, अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करो तो। सो कौन से ऐसे स्किल्स आपने सीखे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से, समझ में आ रहा है, जैसे म्यूजिक,
अगर म्यूजिशियन है तो वो म्यूजिक सीखते हैं, पियानो बजाना सीखते हैं, ड्रम्स बजाना सीखते हैं. सो दिस इज अ स्किल दैट दे लर्न फ्रॉम पर्टिकुलर एक्टिविटी. ठीक है, उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं. मतलब आपके आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं उनकी टेस्ट ली जाती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज एबिलिटी टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट तो समझ गए. एबिलिटी मतलब क्या आप ये जॉब परफॉर्म कर पाएंगे. मैंने आपको जॉब दिया है कार बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार. तो क्या आपको आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप उतना नॉलेज है आपको. आर यू इनफ, आई मीन आर यू केपेबल इनफ टू डू द जॉब. समझ में आ रहा है. तो यस, जिसको कैपेबल मशीन, है के लिए. हाँ, केपेबिलिटी चेक करने के लिए. ठीक है, मतलब आपको उतनी केपेबिलिटी है कि आप सॉल्व कर पाएंगे ये प्रॉब्लम, है ना. तो एक छोटे क्लर्क लेवल के एम्प्लॉय से हम नहीं बोल सकते कंपनी का बहुत बड़ा इशू हो गया उसे सॉल्व करो. बट यस, लॉयर एंड ऑडिटर एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो केपेबल है सॉल्व करने के लिए, कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो. ठीक है, तो स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट रखा जाता है. ये किस में रखे जाते हैं ये दोनों टेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट में जब ये आपको सिलेक्ट करने के लिए टेस्टिस रखे जाते हैं ना, ये दो टेस्टिस रखते हैं वो लोग, एक एबिलिटी टेस्ट और एक एप्टीट्यूड टेस्ट. अच्छा, और भी कुछ टेस्टिस होती हैं क्या. हाँ, इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट भी होता है. इंटरेस्ट मतलब आप में कितना इंटरेस्ट है ये जॉब को परफॉर्म करने का. अब मैंने आपको जॉब दिया, समझो एग्जांपल ले लो, मैंने आपको जॉब दिया मशीन्स को रिपेयर करने का, कंप्यूटर्स को रिपेयरिंग करने का, हार्डवेयर का काम, पूरा हार्डवेयर. लेकिन आपका इंटरेस्ट तो सॉफ्टवेयर में है, तो क्या आपका इंटरेस्ट लगेगा हार्डवेयर की जॉब पे. नहीं. आता भी है आपको, ठीक है, लेकिन आप इंटरेस्टिंगली नहीं करोगे. जब हम इंटरेस्ट से कोई काम करते हैं ना, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं. वही लिखा हुआ है, आप नीचे सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ोगे ना, जब कि रिसर्च में पाया गया है, रिसर्चेस की गई है कि जब कोई बंदा इंटरेस्टिंगली जॉब परफॉर्म करता है ना, तो सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज ही इज नॉट सक्सेसफुल. ठीक है, तो कंपनी को अगर सक्सेस चाहिए तो आप चेक करो आपके कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं जॉब परफॉर्म करने की, मजबूरी में जॉब कर रहे हैं कि बस ऐਵੇਂ ही करना है. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. नेक्स्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट. अब पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, चेक करना कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है. पर्सनैलिटी मतलब आउटर पर्सनैलिटी नहीं, कैसे दिखते हैं, कितनी हाइट है, कितना वेट है, नहीं, कैसे आपके बिलीव्स हैं, कैसे आप सामने वाले से बिहेव करके, मतलब कैसे आप बात करते हैं उनसे, गुस्से से तो नहीं बात करते हैं सबसे चलते फिरते, कैसे आप बात करते हो, सॉफ्टली, काइंडली. ठीक है, आपके बिलीव्स कैसे हैं, आपके मैनर्स कैसे हैं, वेरी गुड, आपके एटिकेट्स कैसे हैं, आपकी उठनी बैठनी कैसी है. सो ये सब आपकी पर्सनालिटी चेक किया जाता है, पर्सनालिटी चेक की. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज. अभी ये हो गया, टेस्टिस हो गया. सिलेक्शन ऑफ टेस्टिस में कितनी टेस्टिस थी, एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट. यस. Yes. 4 types of tests are there in step number 3, selection test. अब नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट. हो गई, मैंने आपके बारे में जान लिया, टेस्टिस ले ली. अब मैं इंटरव्यू लूंगी आपसे, ऑफिशियल इंटरव्यू, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं हम कैंडिडेट्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. ठीक है, आपको पता है अभी इंटरव्यू क्या होता है, उसको मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी. ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन. अब मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है पर्सन का, जो सिलेक्ट हुए ना, जो इंटरव्यू में पास होते हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है, टू चेक वेदर दे आर मेंटली एंड फिजिकली फिट. टू चेक वेदर दे आर मेंटली ओके एंड फिजिकली फिट. They are not suffering with contagious diseases like coronavirus is contagious disease. अगर आपने किसी कंपनी में गए और वहां पे इंटरव्यू दिया, तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं वो लोग, पता लगाने के लिए कि कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो फैल जाएगी किसी और को. कॉन्टेजियस है मतलब a disease that may spread from one person to another, वायरल हो सकती है ना. तो ऐसा कोई डिजीज तो नहीं है आपको, वो चेक करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, या फिर अगर आप मेरे एम्प्लॉय बन गए और आप किसी मेजर डिजीज के अंडर, आई मीन कोई मेजर डिजीज आपको
है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो, जॉन्डिस, या फिर बार बार आपको फीवर आता रहता है, तो आपको पता लग गया कि आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, या फिर टीबी की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा कैंसर, या फिर या कोई ऐसी हार्ट हार्ट स्ट्रोक प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मेजर डिजीज तो नहीं है ना। तो ये क्यों चेक करवाते हैं, आई टेल यू, क्योंकि कंपनी है ना एम्प्लॉयज के मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जितनी बार एम्प्लॉयज को डिजीजेस लगेंगी या ज्यादा डिजीजेस होंगी, तो बार बार उनको मेडिकल का खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा ना, कंपनी को ट्रीट करना पड़ेगा ना, ये सारा मेडिकल एक्सपेंसेस का जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी को ट्रीट करने पड़ेंगे कैंडिडेट्स के लिए। तो कंपनी का खर्चा तो बढ़ जाएगा इनफैक्ट एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के चक्कर में। सो इसीलिए भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। रेफरेंस चेक, अब जानकारी में है किसी के पर्सन ये, कि कोई अननोन पर्सन आके कहीं पे भी किसी को भी हम अपॉइंट कर रहे हैं, नहीं, जानकारी में है ये पर्सन किसी के, वो चेक करना है, रेफरेंस चेक बोलते हैं उसे। टू प्रोवाइड नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ 2 or 3 persons who know them well। मतलब अभी एग्जाम्पल ले लो, अभी आप स्टूडेंट हो, तो एज अ स्टूडेंट आपसे नंबर्स लिए जाएंगे, किसके, नेम एंड एड्रेस और फोन नंबर्स लिए जाएंगे, किसके, टीचर्स के, प्रिंसिपल का। जैसे कंपनी वाले कॉल करके पूछ सके कि वाकई में ये आपका स्टूडेंट था कि नहीं था, हम इसको अपनी कंपनी में रख रहे हैं, इसका बिहेवियर कैसे था वाइल ही वॉज इन स्कूल, वाइल ही वॉज इन कॉलेज, उसे कहते हैं रेफरेंस। मतलब आपने मेरा रेफरेंस दिया और मैंने आपके लिए बताया कि हाँ ही वॉज और शी वॉज माई स्टूडेंट एंड शी वॉज वेल बिहेव्ड पर्सन। समझ में आ रहा है? तो उस बेसिस पे आपको आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका रेफरेंस अच्छा है ना। तो देखो, जैसे रेफरेंस दोगे टीचर और प्रिंसिपल का तो और अच्छा, रेफरेंस दोगे प्राइम मिनिस्टर का तो और अच्छा, रेफरेंस दोगे होम मिनिस्टर का तो और अच्छा। आपको समझ में आ रहा है? मतलब जितना बड़ा रेफरेंस उतने चांसेस ज्यादा होते हैं एम्प्लॉय के सिलेक्शन के। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, एम्प्लॉयर्स का रेफरेंस देना, प्रीवियस एम्प्लॉयर, मतलब जहाँ पे मैं जॉब करके आ चुकी हूँ उसका रेफरेंस देना। तो वो आपका जॉब, जो पर्सन होगा, जो एम्प्लॉयर होगा आपका पहले वाला बॉस, वो बताएगा आपके बारे में कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये इनको शिफ्ट होना पड़ा शायद इसीलिए इन्होंने जॉब छोड़ दिया। ओके, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनका आपने रेफरेंस दे दिया। या अदर पब्लिक फिगर्स, मतलब जैसे जो पब्लिक फिगर्स है, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन की लाइन में है और ये बहुत जाने पहचाने, क्या बोल सकते हैं इनकी, उन्हें जाने पहचाने हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का भी रेफरेंस दिया जा सकता है। फिर लास्ट स्टेप आपका होता है फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में क्या होता है, सारे ऑब्स्टेकल्स, सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एज अ डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट के लिए कौन से पर्सन को अपॉइंट करना है, उसका अप्रूवल दिया जाता है। सपोज आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भेजना है और मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजना है उनको, सो कौन से पर्सन को कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब ड्यूटीज पे लगाना है, उसका फाइनल अप्रूवल यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में दिया जाता है। और फिर अपॉइंटमेंट लेटर रिगार्डिंग पे स्केल, कितना आपको पे किया जाएगा, आपकी पोस्ट क्या है और आपकी ड्यूटीज क्या होंगी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। अपॉइंटमेंट लेटर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कैंडिडेट और कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव दोनों की सिग्नेचर होनी चाहिए, अदरवाइज दैट अपॉइंटमेंट लेटर इज इनवैलिड। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइनल अप्रूवल में अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर इज इश्यूड टू द कैंडिडेट, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, और इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइन किया जाता है बिटवीन कैंडिडेट एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक सबको क्लियर है? 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स क्लियर हैं? समझा मैम। एक बार देख लो 7 स्टेप्स कौन कौन से थे। पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक, सिलेक्शन टेस्ट्स में हमने डिफरेंट टेस्ट्स के बारे में पढ़ा, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, पर्सनालिटी,
इंटरेस्ट। Interest. यस। फिर नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, कोई कॉन्टेजियस डिजीज तो नहीं है उसके लिए, रेफरेंस चेक लिया जाता है एंड फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। ओके गॉट इट दिस मच? Yeah, ma'am. Yeah. So last part is pending, that is type of interviews. Just let me check how many types are there. Use of group discussion अपने को नहीं करना है. So last part is left, which is types of interviews. So just a minute. We'll start in a minute. Give me a minute. Yeah. See, types of interviews. अब जब आपसे इंटरव्यू लिया जाता है ना, which was that step? I think fourth step. थर्ड था आपका सिलेक्शन टेस्ट एंड देन इंटरव्यूज लिए जाते हैं. सो जो आपका इंटरव्यू लेने का स्टेप होता है ना, उसमें पैटर्न्स होते हैं इंटरव्यू लेने के. मतलब पैटर्न्स मतलब जैसे टाइप्स. सो देर आर 6 to 7 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज. जैसे फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. अब नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मींस, जिसमें पैटर्न ऑलरेडी डिसाइडेड होता है. दैट मींस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर विथ इंटरव्यूअर. कौन कौन से क्वेश्चंस कब कैसे कैसे पूछने हैं उसका ऑलरेडी उनके पास पूरा डिस्क्रिप्शन होता है. ठीक है, ऑलरेडी उनको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, बस आपसे पूछते जाना है वो उसी सेम मैनर में, सेम फॉर्म में. ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. देखो, द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूजेस अ प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही बनाए हुए हैं क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू एवरी पर्सन हु अप्लाइज फॉर पर्टिकुलर जॉब. मतलब वो सारे क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं. ठीक है, और इंटरव्यूअर यूजेस प्रिंटेड फॉर्म दैट कंटेन्स द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. उनके पास प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड ही यूज्ड टू आस्क दोस क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी एप्लीकेंट. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब कभी भी कुछ भी कैसे भी पूछ लेंगे, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड होगा वो. आपकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना. आप मेरी एरिया है अकाउंटिंग, तो मेरा जो इंटरव्यूअर होगा वो मुझसे अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, नॉट मार्केटिंग रिलेटेड. ठीक है, अभी कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसका उसका कोर एरिया था, स्पेशलाइजेशन था फिनेंस, तो जब इंटरव्यूअर बैठेगा इंटरव्यू लेने के लिए तो वो आपसे फिनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा. So unstructured means freedom to ask any question at any point of time, and you can change your questions, and open ended questions are there. Just like open ended question पूछे जाते हैं. जैसे जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर मैंने आपको ये पर्टिकुलर टास्क दे दिया तो आप कैसे परफॉर्म करोगे. अगर कंपनी की सेल्स डाउन चली गई और मुझे इंक्रीज करनी हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है ये सेल्स इंक्रीज करने के लिए. तो आपने उनको क्वेश्चन थ्रो कर दिया, वो लेट अस सी हाउ ही आंसर्स. तो अनस्ट्रक्चर्ड सिर्फ यस और नो में नहीं होता. वेरी गुड. सिर्फ यस और नो की डिटेल्स में आंसर नहीं लिए जाते, पूरा पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे आंसर्स लिए जाएंगे. उसे कहते हैं ओपन एंडेड. ठीक है, उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड. मतलब कभी भी आप किसी भी टाइम पे आप कोई भी क्वेश्चन आप थ्रो कर सकते हो ऑन इंटरव्यूअर, आई मीन ऑन इंटरव्यू. ठीक है, मल्टीपल एंड ग्रुप इंटरव्यूज. अभी आपने देखा होगा पैनल इंटरव्यूज होते हैं. मल्टीपल एंड ग्रुप इंटरव्यूज मतलब आप इन दिस फॉर्म ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट स्पेंड टाइम टॉकिंग टू सेवरल डिफरेंट पीपल सेपरेटली. जैसे जिसको ना पैनल इंटरव्यू भी बोलते हैं. जैसे एग्जांपल, देयर इज नॉट वन पर्सन हु इज आस्किंग यू क्वेश्चन एट वन टाइम. मतलब you don't have to address only one person interviewer. You may have to address 5 to 6 to 10 different people at one time. Now each one of them will ask you questions, each one of them. So that is known as group interviews. That means so many people are there to ask you questions and only one person is there to answer. That means suppose I am going for an interview and there are 4 or 5 people sitting together
in a conference hall, suppose, and I am going to address them. Are you getting my example? So I am going to give answers to of each one of them. Okay, so one by one they will go on asking me questions, and then I will have to answer them. That is known as panel interview. Panel means group. Okay. Next is discussion interviews. Discussion interviews means, now in this particular interview method, discussion is particularly held. What kind of discussion? Suppose I am giving you a particular role to perform, so how will you be performing? या फिर एक टॉपिक पे डिस्कशन, जैसे एग्जांपल ले लो, जीएसटी अगर हमारी कंट्री में आ गया, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी on entrepreneurs, on new business entrepreneurs, on maybe on जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं उन पे क्या असर हुआ जीएसटी का, ठीक है? ये हॉट टॉपिक्स पे जो अभी अभी चल रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस। ओके, तो हमने पूछ लिया वायरस के बारे में, सो हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, व्हाट इज द